हेलो फ्रेंड्स। कल हमने एक सीरीज़ शुरू की थी, दैट इज़ सेट्स। एक छोटा सा रिकैप उसका आज लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेट इज़ a well defined collection of objects, and the objects are called in the members or elements of the set. Basically the concept is that either an element is belongs to set or doesn't belongs to set. The elements of set are denoted by small elements, small alphabets, and the sets are denoted by capital letters. And the best example again and again ke the English vowels, that is A, E, I, O, U, collection of these sets is called collection of these elements is called the set. Then we discussed about roster and set builder form. Roster means we are listing all the elements, and set builder yani we are getting some fixed property which is shared by all the elements, that is the set builder form. And then we discussed empty set, because that is a important set in terms of definitions and concepts. A set which doesn't have any element. For example, अगर हम बात करें the set of natural numbers between 2 and 3, so that will be an empty set, because 2 is a natural number, 3 is a natural number, and there is no natural number between 2 and 3. Singleton set, that is a set which has only one element, that is called a singleton set. And the example is again, that is if we talk about x plus 1 is equal to 0, then the root of this equation, that is x equals to minus 1, is a singleton set, because this equation will have only one root, that is minus 1. Then finite and infinite set, that is a set which has finitely many elements is called a finite set, and the set which has infinitely many elements, that is which cannot be counted, that is called infinite set. Equal sets, obviously two sets are said to be equal if the number of elements are the same first of all, and then each and every element must be same. And obviously non-equal sets is a much bigger concept, because out of 100 elements, if there is a one single element which is differ from other, then two sets are not equal. And that's why we have to introduce the concept of equivalent sets, that is two sets are said to be equivalent if the number of elements are same, and elements may be differ. And on a larger scale we can say two sets are said to be equivalent if there is a 1:1 map between the two sets. तो यहाँ तक हमने कल किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे सबसेट्स की। तो सबसेट, obviously first of all if we talk about definition, then a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. And in a simple language we must say, if every element of A is contained in B, अगर A का हर एक एलिमेंट B में है तो हम कहेंगे कि A is a subset of B. And the simplest two examples are set itself, क्योंकि अगर हम बात करें कि A का हर एक एलिमेंट A में है तो इसका मतलब A खुद का एक सबसेट है। और दूसरा नल सेट, एम्प्टी सेट, इसीलिए हमने वहाँ पे एम्प्टी सेट डिस्कस किया कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो आप कह सकते हैं कि उसका हर एक एलिमेंट एक दूसरे सेट में कंटेन हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं. So there are two types of subsets called, one proper subset and then the second is improper subset. Improper subsets are two: the set itself and the null set.
and rest of all subsets of a set are called proper subset. From the definition of subset, we must say there is a definition of superset. If A is a subset of B, then B is a superset of A. And now again a important concept, that is universal set. Universal set, in mathematics there is always a dilemma, up to what level we have to go, up to what level we have to done the calculations, up to what level we have to consider the things. So the universal set gives that an idea, okay, a set in which all terms, all definitions, all elements, whatsoever you are doing, that is contained in that set. एक वो सेट जो हमारा जो सारा जो सोचने समझने की शक्ति है वो उस सेट में है, उसके बाहर हम नहीं सोचेंगे. दैट इज़ ए मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट. अगर मैं बुकिश डेफिनेशन की बात करूं तो इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन and there happens to be a set which is a superset of each one of the given sets, then such sets is known as universal set. तो यानी अगर एक सेट ऐसा है जो मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि जहाँ से ओरिजिन शुरू हो रहा है, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट. एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ ए यूनिवर्सल सेट. लेकिन उसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर वो रियल एनालिसिस भी नहीं रहती और रियल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट भी नहीं रहता. और हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर्स का जो सेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट हो जाता है. फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट को यूनिवर्सल सेट ट्रीट करते हैं. लेकिन फिर अगर हम उसके आगे की प्रोडक्ट्स की बात करें, सी को आर स्क्वायर लिख देते हैं, आर क्यूब आ जाता है, आर की पावर एन तक जाते हैं. तो एक दो एग्जाम्पल देने से बात नहीं चलती, सीधे यही बात समझनी पड़ती है कि इफ़ देयर इज़ बियॉन्ड आवर लिमिट्स नथिंग इज़, यानी जो हमारी सोचने समझने की शक्ति से बाहर जहाँ कुछ नहीं है वो यूनिवर्सल सेट है. फिर हम आते हैं पावर सेट. पावर सेट बहुत सारी किताबों में आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि set can be an element of another set. So we are considering a set in which elements are the set. So if A is a set and we have all possible subsets of that set and construct a set which contains all the subsets of A, then this new set is called the power set of A. एग्जाम्पल जो आप इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो A में अगर 2 और 3 हैं केवल, तो उसके जो सबसेट्स हैं वो 4 हैं. और एक सेट हमने वो कंसीडर किया जिसमें कि सारे सबसेट्स ये आ रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पावर सेट ऑफ ए. एंड दैट इज़ डिनोटेड बाय पी ए. एक चीज़ आती है, रह जाती है कि सबसेट्स कितने होंगे. तो अगर एक सबसेट में, एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 टू द पावर n होते हैं, या यहाँ पे m लिखा है हमने. तो अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 2 टू द पावर m होते हैं. अब इसके बाद बात आती है ऑपरेशंस ऑन सेट. तो सबसे पहले जो पहला ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं दैट इज़ यूनियन. सो यूनियन इज़ के ए यूनियन बी इज़ डिफाइंड एज कि आइदर एक्स इज़ इन ए और इन बी. दैट इज़ अगर दोनों में से किसी एक सेट में भी एलिमेंट है तो वो उनके यूनियन ए यूनियन बी में आ जाएगा. और अगर एक एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो दोनों में से किसी भी सेट में नहीं है.
और इसका जो रिवर्स है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी इंटरसेक्शन में एलिमेंट तब आएगा जब वो दोनों सेट में होगा। तो दो रिजल्ट बनते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, and x doesn't belongs to a intersection b implies x doesn't belongs to a or x doesn't belongs to b। यहीं से एक बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है जो आगे बहुत काम आती है कई बार, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स आर डिफाइंड एज टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए नल सेट। यानी अगर दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट है तो हम उन्हें कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, और अगर वो नल सेट नहीं है तो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग सेट्स। ऐसे ही एक आगे आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो दिस इज़ जो माइनस हमने यहाँ बनाया है, डिफरेंस वर्ड यूज़ किया है, माइनस सिंबल लिया है, ए माइनस बी लिखा है, तो दैट इज़ ओनली सिम्बोलिक इन द टर्म्स जो आप बचपन में पढ़ते आए हैं। ये सेट्स की अलग डेफिनेशन है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर कि ये वो माइनस नहीं है जो आप थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। ये एक नया माइनस है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में दिया भी है कि ए हमने लिया है 1 2 3 6 और बी हमने लिया है 1 2 4 8। तो ए माइनस बी में 3 एंड 6 आएंगे, क्योंकि अगर हम डेफिनेशन से कंपेयर करें तो x बिलोंग्स टू ए एंड x डजेंट बिलोंग्स टू बी। तो यानी 1 जो 1 एंड 2 हैं वो बी में भी हैं, देन 3 एंड 6 वो बचते हैं जो बी में नहीं है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 6। तो लेट बी क्लियर दिस एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सो कॉम्प्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन इट इज़ वेरी इजी कि वी से कि देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए पर्टिकुलर सेट। और अभी हमने ऊपर यूनिवर्सल डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दी है, तो वो आपको बता रही है कि हमारे जो भी कंसीडरिंग एलिमेंट्स हैं, सेट हैं, सब सेट हैं, वो सब एक यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो हमने उसे कह दिया यू। अब एक सेट लिया ए। अब अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है लेकिन यू में है, तो वो कहलाता है कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है कि मान लीजिए हमने यू यहाँ पे जैसे कंसीडर किया 1 2 3 4 5 6 7 और ए लिया 1 3 5 7। तो जो हम एक ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं ये हमारे यू को डिनोट करता है, और इसके अंदर जो सर्कल्ड बनाते हैं वो हमारे पर्टिकुलर एक सेट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 3 5 7 ए में है तो वो सर्किल में लिख दिए, और जो 2 4 6 बचते हैं वो बचे हुए रेक्टेंगल में लिख दिए, और 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी इस यू के अंदर आ गए। So that is an example कि U, A and how elements are not in A are in U, elements are in A, that is are in circle. So that is the concept of Venn diagram, and we will continue by in next video by the Venn diagram.